children, college students, school and college faculty, army officers, police officers, doctors, lawyers, self help groups, gram panchayats, senior citizens, associations, and many more. In its short tenure, BIP has conducted numerous investor awareness programs and various customized training programs and impacted the lives of more than 3 lakh individuals. We aim at doing so during these challenging times as well, which is why we have come up with an initiative of webinar management where BIP along with colleges like SNDT continue to educate individuals through live seminars on important topics. These seminars are available on our YouTube channel, BIAP Official. In addition, also check us out on Facebook, Instagram, and LinkedIn and subscribe to our Telegram channel to receive updates about various engaging sessions. Now, I'll hand over the rest of the event to SNDT team. Thank you. So, good morning everyone. My name is Shivani Padmakar Jirvankar, student of SNDT TMF Smart Center. I extend my warm welcome to everyone for the Investor Awareness and Financial Literacy Program. To begin with, I would like to welcome Dr. Bhaskar Rigwe sir, Assistant Professor and Project Director, Ms. Arshia Valikar ma'am, Center Manager, SNDT TMF Smart Center, BIAP team, and welcome to the NSC who are sponsoring this webinar, and of course welcome to the participant. Now I request Ms. Arshia Valikar ma'am to give a brief introduction about SNDT TMF Smart Center. Yeah, thank you so much, Shivanjali, and thank you so much, Jia, for giving introduction of BIAP. Good morning to all participants, and first of all, happy World Investor Week, and I am very grateful of BIAP and NSC for sponsoring this webinar for SNDT Smart Center students and other participants. And the one of our main objective is कि फाइनेंस इन्वेस्टमेंट के बारे में और हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं इसके बारे में अवेयरनेस जो स्प्रेड करने का जिम्मा एनएससी और बीआईपी ने उठाया है उसको एक हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं विद देम कोलैबोरेशन and it is very very important to all people to get to know idea about the investment awareness. I will not take a more time for the introduction. Basically, SNDT TMF Smart Center is working on a employability project, and we are running this project only for the women in the our center. And Tech Mahindra Foundation having 110 center in overall all India. And main objective is हमारे जो सेंटर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है इज वुमेन एम्पावरमेंट. After the training, we give them a placement in a free of cost. Yes, obviously, as it is a part of a CSR of Tech Mahindra Foundation. And yes, definitely, I can see that there are a lot of other participants also join, जो हमारे students नहीं हैं. If anyone want to do a course at our center, they can contact us. We will provide you all the details. Thank you so much, Shivanjali. Please continue. Yes, ma'am. I would like to give brief introduction about our guest speaker for the webinar today. Priyanka Acharya is a learning and development professional with a past experience of 12 years. She has completed her master's from the University of Mumbai. She is associated with Enhanced Skill, a learning and development firm wherein they conduct annual learning interventions for company. She is also the proprietor of Priyanka Consulting Company, wherein they provide personalized consulting for the business owner and smaller teams. They have conducted programs for the various organizations. Few of them are Dana Bank, Hotel Taj Mahal Place, Religious Health Insurance, etc. It's a great pleasure to have with you as today, ma'am. Yeah, just to wait a minute, Shivanjali. We have Sandeep Pandit sir from Tech Mahindra Foundation, who is a senior executive of our location team. So I just want to request to Sandeep sir if he wants to give some few words to our participants. Yeah, thank you, Arsha, and thank you, SND team. And
Thank you very much to organize the wonderful session of occasion of World Investor Week. And I think this is a starting right now for the investor awareness financial literacy program. And I hope we have continued the same web series towards to in future. So thank you again, all the participations and SNDT and who was the I think It's B, BIA, I, right? BIF team also. So over to you, Arshia, and thank you for inviting me for the wonderful sessions. We are also this is a topper for me in that in how to invest and how to uh, financial literacy programs. This is a top of me also. That's the good. Okay, okay. Thank you very much. Yeah. Yeah, thank you, sir. Yeah, over to you, Shivanjali. Yes, ma'am. Before starting the webinar, I request all participants to mute yourself and switch off your cameras. Question answers will be taken at the end of the session. You may post your question in the chat box. Now I request Priyanka Acharya ma'am to start the webinar. Priyanka ma'am, we can't hear you. And Arshia ma'am, can you please switch on the present now option so that Priyanka ma'am can present her screen? She can present. There is no issue. We can't still hear you, ma'am. Is it better now? Can you hear me? Yes, ma'am. Voice is breaking a little, but we can hear you now. Okay. All right. I'll try to No, no. make it as yeah. Okay. ऑल राइट सो हम शुरुआत करते हैं जिया व्हेनेवर यू फील की वॉइस नहीं आ रही है तो प्लीज मुझे एक बार अलर्ट कर दीजिए Okay, ma'am. ओके थैंक यू सो चलिए हम शुरुआत करते हैं और क्योंकि जैसे कहा गया है आज वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक हो रहा है और हर किसी को जनरली पैसों से प्यार होता है होना भी चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली हम सारा दिन मेहनत पैसों के लिए करते हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए करते हैं तो अच्छी लाइफस्टाइल के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट अच्छे पैसे अच्छे सेविंग्स ये सबको करना होता है लेकिन ये अच्छे की डेफिनेशन क्या है वो हर किसी के लिए डेफिनेशन भी अलग होती है और हर किसी की कंफ्यूजन भी अलग होती है सो इस सेशन को शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना है आप मुझे चैट बॉक्स पे आंसर्स भेज सकते हैं मुझे ये बताइए कि आमतौर पर एक एप्पल में कितने सीड्स होते हैं एक सेब में एक एप्पल में जनरली कितने सीड्स होते हैं आप मुझे चैट बॉक्स पे आंसर्स लिखते रहिए ओके 4 4 10 यस लिखते जाइए आप जितना ज्यादा आप बात करेंगे सोचेंगे उतना ज्यादा आपको भी सेशन में मजा भी आएगा और मजा से ज्यादा आपको इम्प्लीमेंटेशन भी करेक्टली समझ आएगा ओके ओके तो मुझे 4 8 3 5 बहुत सारे आंसर्स मिले थैंक यू सो मच अब मुझे आपको दूसरा क्वेश्चन पूछना है दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक सीड में कितने एप्पल्स आमतौर पर हो सकते हैं एक सीड में कितने एप्पल्स हो सकते हैं ओके ओके और कुछ मुझे अभी तक एक आंसर मिल गया है कंफर्म नहीं है इनफाइनाइट एन नंबर अनलिमिटेड ओके ओके वन सीड वन ट्री अमेजिंग ओके ओके
तो यही इस पूरे सेशन का कॉन्टेक्स्ट है आज की। अगर आप ये सोच रहे हैं, मैं गलतफहमी सबसे पहले हटाना चाहती हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आप 4-5 स्कीम्स बताऊंगी और मैं आपको बोलूंगी बस इधर पैसा डाल दो, पैसा डबल हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी इस सेशन में नहीं होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से आपके यहाँ पे कोई आर्किटेक्ट आता है, तो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, आपके अंडरस्टैंडिंग और आपके चॉइस के हिसाब से वो अपने ब्लूप्रिंट में चेंजेस करके बाद में वो कुछ अलग से आपका एक आर्किटेक्चर प्रिपेयर करता है। उस के हिसाब से आपके घर का इंटीरियर होता है। आपके और आपके पड़ोसी के घर के इंटीरियर में जमीन आसमान का फर्क होगा, चाहे एरिया और लेआउट सेम हो तो भी। तो उसी तरह से आपके इन्वेस्टिंग, सेविंग, स्पेंडिंग सारे पैटर्न्स में बहुत फर्क होता है। इसलिए ऐसी कोई गाइड नहीं है, ऐसी कोई शॉर्टकट नहीं है कि ओके यहाँ पर 4 स्कीम है, पैसे डाल दो, पैसे डबल हो जाएंगे। लेकिन फिर ये सेशन क्यों हो रहा है और फिर ये वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक क्यों हो रहा है? क्योंकि आमतौर पर ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है, ऐसे बेसिक चीजें कुछ होती है जो हम कभी कभी चूक जाते हैं, और उसकी वजह से हमें लगता है कि मैं पूरा दिन काम कर रहा हूँ, मैं पूरे दिन मेहनत कर रही हूँ, लेकिन पैसा कमा क्यों नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरा पैसा बढ़ क्यों नहीं रहा है, मेरी वेल्थ क्यों नहीं बढ़ रही है। तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान में भी रखनी है, सोच समझ कर करनी है, और इसीलिए ये सेशन हो रहा है। अब इस सेशन में हम लोग काफी सारी चीजें बात भी करेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज आप अपने नोटपैड्स और पेन्स अपने पास रखें, क्योंकि कुछ कुछ चीजों में आपको अगर डाउट्स आते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कुछ चीजों में अगर आपको लगता है कि डाउट्स भी पूछने हैं वो भी, और उसके साथ साथ अगर आपको कुछ लिख के रखना है क्योंकि फ्यूचर में वो काम आएगा, तो वो जैसे भी है आपको अकॉर्डिंगली आपको ये चीज करनी है। ओके जिया, जस्ट कंफर्म आपको मेरा स्लाइड दिख रहा है या नहीं? यस मैम, दिख रहा है। ओके, थैंक यू। ओके, सो इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक पे। हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने प्लान्स बनाएं और किस तरह से आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करें कि आपकी आर्थिक सुरक्षा भी रहे और सुरक्षा के साथ उसका ग्रोथ भी होते रहे। तो ये एक सेबी का इनिशिएटिव है वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक। तो ये विश्व भर में ये इनिशिएटिव अभी हो रहा है इस वीक, क्योंकि हम चाहते हैं कि इन छोटी छोटी बातों की वजह से एटलीस्ट किसी के घर में जो वृद्धि होनी चाहिए, जो आपने अभी अभी दिवाली में पूजा की होगी, लक्ष्मी पूजन किया होगा, सब कुछ किया होगा, उसमें एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और वो लक्ष्मी की वृद्धि जेन्युइनली होनी चाहिए। तो अब अगर जेन्युइनली वृद्धि करनी है तो एनएससी जो ये सेशन आपके लिए लाया है, उसका एक सिंपल सा मोटो है। एनएससी कहता है सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। तो कभी कभी हम इन्वेस्ट कर देते हैं, समझने की कोशिश हर जगह से करने जाते हैं और फिर कंफ्यूज्ड होते हैं, और सोचते तो हम रहते ही हैं, और उसकी वजह से कभी कभी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हम शुरू ही नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि सोचते हैं, देखते हैं, अगले साल करेंगे, 2021 से करेंगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सोचेंगे, और वो सोच सोच जो गलत सोच है उसकी वजह से समझ में नहीं आता कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो एनएससी इस इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से आपको यही बताना चाहता है कि किस तरह से आप सोचे, किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट्स को समझे, और फिर किस तरह से आप उसे उधर इन्वेस्ट भी करें और अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट भी करेक्ट तरीके से करें। तो ये होगा आज का सेशन, और हम लोग इस सेशन में काफी सारी चीजें करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कहानी से शुरुआत करना चाहती हूँ। आप लोगों को कोलगेट तो अच्छी तरह पता ही होगा। कोलगेट एक बहुत अच्छा ब्रांड का टूथपेस्ट है। ओके, अब हम इसको एक स्टोरी के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल बना के आगे चलते हैं। अब कोलगेट के हिसाब से अगर सोचे तो कोलगेट टूथपेस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, और कोलगेट का सेल भी अच्छा हो रहा था, ब्रांड भी बहुत अच्छी है। गांव में तो लोग कहते हैं कोलगेट किया वो टूथपेस्ट लिया भी नहीं बोलते। सो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब ये जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो कोलगेट ने एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे, एक सीनियर पर्सन ने कोलगेट के ऑफिस में सोचा, अगर हम टूथपेस्ट में नमक डाल दे तो कैसा रहेगा।
अब जब मैं ये कह रही हूँ तो बहुत सारे आप लोगों के सामने वो माइक लेकर लेडी आ गई होगी जो पूछ रही है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। सो कोलगेट ने सोचा कि यार नमक डाल दे तो कैसा रहेगा, तो ये तो सोच लिया, हो गया, आइडिया अच्छा था। फिर कोलगेट वालों ने सोचा कि नमक डालने का आइडिया बेहतरीन है, लेकिन जो हमारा नॉर्मल कोलगेट बिक रहा है उसको तो हम बंद नहीं कर सकते, वो तो हमारा एकदम ऑल ओवर इंडिया हिट प्रोडक्ट है, तो उसको तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अब कैसे करें इसको मैनेज? तो अगर ये करेंगे नया नमक वाला टूथपेस्ट, तो हमें कुछ उसके लिए अलग करना पड़ेगा, हमें कुछ उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्शन को बहुत चेंज करना पड़ेगा। तो इसको कैसे आगे चलाए? तो जब ये सोच रहे थे तो इन्होंने सोचा कि एक लोन ले सकते हैं। तो फिर उन्होंने सोचा लेकिन इंटरेस्ट का बर्डन आएगा और प्रोडक्शन में वक्त लगेगा, प्रॉफिटेबिलिटी आने में समय लगेगा, तो कैसे करें? फिर इन्होंने सोचा जब हम पब्लिक के लिए टूथपेस्ट बना रहे हैं तो क्यों ना पब्लिक के पास जाएं। तो कोलगेट ने बहुत बड़े बड़े हाईवे पे भर भर के होर्डिंग्स लगा दिए, बहुत एडवर्टीजमेंट की, बहुत न्यूज़पेपर्स में गए, और वो एसएनडीटी में भी आए थे। तो एसएनडीटी में आके यहाँ पर मैं जो आप में से लगभग 65 लोगों को देख रही हूँ, इनको भी कोलगेट ने ये बोला कि आप सिर्फ 100 रुपया दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप 100 रुपया दीजिए, मैं आपके लिए कुछ अच्छी चीज बनाना चाहता हूँ, तो आप मुझे बस 100 रुपया दे दीजिए और मैं आपके लिए कुछ अच्छा बनाऊंगा। अब हर बार 100 रुपए की चीज हो या 500 की हो या 1 लाख की हो, कुछ लोग हाँ बोलते हैं, कुछ लोग ना बोलते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल लेने के लिए मैं 2 जन को आप में से मेरे स्टोरी के कैरेक्टर्स बना रही हूँ। तो इस ऑडियंस में से अगर एकदम इजी एग्जाम्पल के लिए लूं, तो यहाँ पर जितने लोगों के नाम ए से जे के बीच में शुरू होते हैं, इन लोगों ने कहा कि ठीक है 100 रुपया दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन लोगों ने सोच लिया 100 रुपया दे सकते। जिनके नाम के टू जेड में आते हैं, इन्होंने नहीं, के टू आर में जिनके नाम है, इन्होंने सोचा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ मजा नहीं आया, सोच के पता नहीं क्या करेंगे वो 100 रुपए का, आज 100 मांग रहे कल कुछ दूसरा मांग लेंगे, नहीं नहीं हमको इंटरेस्ट नहीं है। जिनके नाम एस टू जेड से शुरू होते हैं, डोंट माइंड, वो उस कैटेगरी में थे जिन्होंने बोला कि पहले देखते हैं क्या होता है, अभी तो फिलहाल कुछ आगे बोलना नहीं है हमें, हाँ ना कुछ करना नहीं है, देखते हैं क्या होता है। अब अगर मैं 2 कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करूं तो मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पर दीपाली जी दिख रही है पार्टिसिपेंट लिस्ट पे, दीपाली खंडागले जी, आई होप मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रही हूँ। और मुझे नीलिमा पवार कदम दिखाई दे रही है। ओके, सो नीलिमा जी और दीपाली जी, आप मेरे स्टोरी के कैरेक्टर्स है, जस्ट इसको फन मोड में लीजिए आप। ये स्टोरी हर किसी के समझ में आएगी, इसके लिए चैट बॉक्स पर मुझे सारे के सारे इस सवाल का आंसर देंगे। अब स्टोरी में मैंने कहा था कि ए टू जे यानी कि दीपाली जी ने 100 रुपया कोलगेट को दे दिया और छक्का, वो जो भी उन्होंने सर्टिफिकेट दिया वो रख लिया। नीलिमा जी ने सोचा कि नहीं नहीं अभी वो सब कुछ नहीं चाहिए, 100 रुपया क्यों दे दूं, ऐसे कैसे दे दूं, कौन है ये लोग पता नहीं, ने मना कर दिया। अब ये जो सारे के सारे ए टू जे वाले लोगों ने भर भर के पैसे दिए, प्लस बाकी सब ने पैसे दिए, सब कुछ जोड़ जोड़ के कोलगेट ने अपना नमक वाला टूथपेस्ट बनाया, अच्छी खासी ब्रांडिंग की, सब कुछ अच्छे से हुआ और कोलगेट एक हिट प्रोडक्ट हो गया। अब नीलिमा जी बैठ के सोच रही हैं यार कुछ तो उन्होंने बोला था, कोलगेट वाले आए थे, कुछ लिया था, वो दीपाली ने कुछ लिया जरूर था लेकिन तभी मैंने मना कर दिया था। तो अब वो फोन घुमाती है और कहती है अरे दीपाली जी कैसे हो, क्या चल रहा है, लॉकडाउन कैसे चल रहा है, सब कुछ बात करने के बाद उन्होंने कहा अरे वो जो 100 रुपए दे के पता है आपने कोलगेट का एक सर्टिफिकेट लिया था, आप बोलो पेटीएम, गूगल पे, नेफ्ट, जो बोलो, कैश पहुंचाना है घर कैश, मैं आपको 100 रुपया देती हूँ, आप वो कोलगेट वाला सर्टिफिकेट है ना वो मेरे नाम पे कर दो। दीपाली जी भी मुझे बताएं और नीलिमा जी भी बताएं और आप सारे के सारे लोग प्लीज मुझे बताइए, क्या दीपाली जी को 100 रुपए पे वो कोलगेट का सर्टिफिकेट नीलिमा जी के नाम कर देना चाहिए, यस या नो? फास्ट मुझे चैट बॉक्स पे जवाब दीजिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं 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 नहीं, नीलिमा जी खुद मना कर रही है। ओके ओके,
ओके ओके ओके, नहीं करना चाहिए, परफेक्ट, ओके, यही बेसिक साइकोलॉजी है। और यहाँ पर आमतौर पर दीपाली जी नीलिमा जी को बोलेंगे कि ठीक है, अपना एसएनडीटी कनेक्शन के हिसाब से भी सोचे तो एक काम करते हैं, तुम 150 रुपया दोगी ना तो मैं सोच सकती हूँ। अब जब ये बोला गया तो वो जो ट्रांजैक्शन हुआ कोलगेट और दीपाली जी के बीच में, जिसमें इन्होंने 100 रुपया दिया था और कोलगेट ने सर्टिफिकेट दिया था, उस ट्रांजैक्शन को कहते हैं आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, जहां पर एक प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन हुआ, यानी कि पहली बार कंपनी ने किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को शेयर्स दिए और बोला कि मैं उतने हिस्से के लिए आपको कंपनी का ओनर बनाऊंगा। ये हो गया प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन। उसके अलावा जो बाद में दीपाली जी और नीलिमा जी के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, जिसमें ये बात हुई कि आप 150 रुपया दो तो मैं सोचती हूँ, वो जो सेकंड ट्रांजैक्शन हुआ उसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन, जहां पर अब नीलिमा जी और दीपाली जी और कोलगेट, सॉरी, अब कोलगेट का कोई उसमें लेना देना नहीं है। कोलगेट ने पैसे ले लिए, प्रोडक्ट बना ली, सब कुछ हो गया। अब कोलगेट की ब्रांड वैल्यू बढ़ते जाएगी क्योंकि उसकी शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है। तो अब डिसाइड करते हैं दीपाली जी और नीलिमा जी की प्राइस क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए, कब बेचना है, कब खरीदना है, क्यों बेचना है। मैं नहीं बेचूंगी, मैं आधे शेयर्स बेच दूंगी, आधे रखूंगी, वो सब कुछ अब ये दोनों डिसाइड करेंगे। कोलगेट यहाँ पर कुछ भी डिसाइड नहीं करता। ऐसे मार्केट को हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। अब ये तो मुझे आपको कहानी के माध्यम से इक्विटी मार्केट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना था, इसलिए मैंने आपसे कहा कि दीपाली जी और नीलिमा जी के बीच में फोन पर बात हुई। एक्चुअली आज के जमाने में, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के जमाने में, जो 90s से चले आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सिक्योर्ड मैकेनिज्म बनाया गया है, जहां पर दीपाली जी को नहीं पता कि सामने नीलिमा जी है, नीलिमा जी को नहीं पता कि सामने दीपाली जी है। क्योंकि अगर अगर आमने सामने एक दूसरे की जानकारी से कुछ हुआ तो हो सकता है कि प्राइस डिस्कवरी में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम भी हो, जहां पर प्राइस की मैनिपुलेशन हो जाए। और अगर ये मैनिपुलेशन हो गई तो ऑटोमेटिकली मार्केट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए, किसी भी चीज के लिए ये चीज ठीक नहीं होगी। इसलिए ये मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, और इसीलिए एक ऑनलाइन सिस्टम है जहां पर एक दूसरे में कौन कौन है वो किसी को पता नहीं है। अब ये जो मैंने आपको कहानी बताई, इस कहानी में ना तो कोई जुआ है, ना सट्टा है, ना गैम्बल है, ना लक है, कुछ भी नहीं है। ये एक प्योर साइकोलॉजिकल ट्रांजैक्शन है, जहां पर एक कंपनी पब्लिक के लिए कुछ करना चाहती है तो पब्लिक से ही पैसे मांग रही है। पब्लिक ने जब पैसे दिए तो उन्होंने लेके कुछ बनाया। अब अगर वो चीज अच्छे से चल पड़ी तो ऑटोमेटिकली बाकी की पब्लिक इस पब्लिक के पास जाकर सोचेगी कि मुझे भी ये सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे भी ये शेयर चाहिए, क्योंकि ये चीज बहुत अच्छे से ब्रांड बढ़ रही है मार्केट में। इस तरह से शेयर्स के ट्रांजैक्शन होते हैं इंडिया में। फिर भी लोग बहुत डरते हैं शेयर से, और शेयर से वो इसलिए डरते हैं, किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट से आजकल तो लोग फिक्स डिपॉजिट से भी डरने लगे। और ये डर इसके लिए बनने लगा है क्योंकि हमें करेक्ट डायरेक्शन और करेक्ट जानकारी नहीं मिलती हर प्रोडक्ट की। करेक्ट डायरेक्शन और जानकारी प्रोडक्ट की होने के साथ साथ हमें करेक्ट जानकारी हमें कितने पैसे चाहिए उसकी भी होनी जरूरी है। किसी को भी शायद लास्ट ईयर ये नहीं पता था कि लॉकडाउन होगा, लोगों की सैलरी शायद कट डाउन हो जाएंगी, लोगों की जॉब्स चली जाएंगी, ये सब किसी ने नहीं सोचा होता। और उसकी वजह से लोगों को जो क्रंच आया, फाइनेंशियल तकलीफें आई, उसकी वजह से जो खर्चे यहाँ वहाँ हेवायर हो गए, बहुत कुछ जो हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि वो प्लानिंग नहीं बनाई थी। तो प्लानिंग हमें कोविड के लिए नहीं करनी है क्योंकि वो हम प्लान कर भी नहीं सकते, पर हमारे खुद के लिए तो हमारे पास एक थोड़ी सी प्रॉपर प्लानिंग तो होनी चाहिए। अब आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि ये प्लान करे कैसे, मुझे क्या पता कि 60 साल की उम्र में मुझे कितने पैसे लगेंगे, मुझे किसी ने बोला था कि आपके पास 1 करोड़ होने चाहिए, अब मैं सोच रहा हूँ कि शायद उस वक्त 1 करोड़ तो बहुत कम पड़ेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ते जा रही है, तो मुझे 2 करोड़ लगेंगे या मुझे 5 करोड़ लगेंगे। तो 5 करोड़ लगेंगे तो आज कितना सेव करना पड़ेगा? ओ, इतना बड़ा अमाउंट सेव करना है, बाप रे, मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग ही नहीं करनी है।
अच्छा इतना बड़ा अमाउंट सेव करना है, अरे नहीं नहीं वो शेयर में डालेंगे फिर डूब गए तो, इतना बड़ा अमाउंट है, नहीं नहीं म्यूचुअल फंड में डाला फिर उसमें लॉस हो गया तो, इतना बड़ा अमाउंट और इतना छोटा सा एफडी का इंटरेस्ट परसेंट, नहीं नहीं मुझे नहीं डालना है। इसकी वजह से हमेशा वो पैसा ऐसी जगह पर रहता है जहां पर हमें पता ही नहीं कि उसका करना क्या है, और हम ज्यादा कमाने से भी उसकी वजह से डरते हैं क्योंकि बाद में उसको कहाँ पार्क करेंगे उसकी हमेशा परेशानी रहती है। तो इसलिए इस सेशन के माध्यम से जो मैंने आपको छोटी सी कहानी से इक्विटी समझाया, अब मैं आपको आगे ये भी समझाना चाहती हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट न्यूज देखकर या क्योंकि पड़ोसी वो कर रहा है इसके लिए वगैरह वगैरह जब आप करते हैं तो कभी कभी आपके डिसीजन गलत हो जाते हैं। प्रोडक्ट गलत नहीं है, वो डिसीजन गलत है क्योंकि आपने सोचा कि अगर नेबर को प्रॉफिट हुआ तो मुझे भी होगा, अगर लोगों को प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे भी होगा। तो ये जो रिटर्न प्रॉफिट के पीछे हमने जो भाग दौड़ लगा के रखी है उसकी वजह से हमें कभी कभी नुकसान ऐसे हो जाते हैं जो हम बाद में ना भरपाई कर पाते हैं और बाद में हम इन्वेस्ट करने से ही डर जाते हैं। इसके बदले अगर हम लोग कुछ और करें तो अब आपके वो नोट पैड्स और पेन्स की मुझे बहुत जरूरत है क्योंकि आपको अभी अभी कुछ लिखना है। मुझ पे भरोसा करके लिखिए, मैं आपको एंड में बताऊंगी कि मैं आपको एग्जैक्टली क्या बताना चाहती हूँ। मैं आपको एंड में मतलब इतने एंड में भी नहीं, आपको 7 मिनट के अंदर पता चल जाएगा कि आप क्या लिख रहे हैं। अभी फिलहाल मुझ पे भरोसा कीजिए, ये आपके लिए है ना। मैं किसी कंपनी ब्रांड कोई भी इंस्ट्रूमेंट का नाम लेना चाहती हूँ, मैं आपको सिर्फ अवेयर करना चाहती हूँ। सो मैं आपको कुछ और नहीं बताऊंगी, सिर्फ आपके बारे में ही आपसे लिखवाऊंगी। ओके, तो अब आप आगे बढ़िए और सबसे पहले ये लिखिए अपने नोटपैड पे कि आने वाले 3 महीनों के बाद, यानी कि समझिए मार्च पकड़ के चलते, मार्च 2021 में आपके आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से और आपके आज की फाइनेंशियल स्थिति के हिसाब से आपको अंदाजा कितनी लिक्विडिटी की जरूरत होगी, यानी कितने पैसे की जरूरत होगी। अब ये मत बोलना कि 1 करोड़ रुपया चाहिए, 3 महीने में 1 करोड़ रुपया चाहिए, ये सपना है। लेकिन आमतौर पर आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से मार्च 2021 के महीने में आपके पास कितने पैसे रेडी होने चाहिए किसी भी तरह की फाइनेंशियल जरूरत के लिए, चाहे वो घर के एक्सपेंसेस हो, चाहे आपने कुछ और प्लान करके रखा हो, चाहे किसी ने प्रॉपर्टी लेने का सोच के रखा हो, बाइक लेने का सोच के रखा हो, जो भी हो। मार्च 2021 में आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, ये अमाउंट आपको आपके नोटपैड में लिखना है। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, मार्च 2021, और एक अंदाजा अमाउंट, वो कुछ भी हो सकता है, आप बस लिख लीजिए। यहाँ पर चैट वैट में भी डालने की जरूरत नहीं है, ये आपका पर्सनल प्लान है जो आप लिख रहे हैं, बस इतना लिख दीजिए और उसको साइड पे रख दीजिए। ओके, मार्च 2021 और एक अमाउंट, तो मैं आपको और 10 सेकंड देती हूँ, आप इसको फास्ट लिखिए। ओके, अब जब 3 महीने की बात की तो कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट या इजी हो जाता है, तो चलिए थोड़ा और इजी कर देती हूँ आपके लिए। अब आगे आप जो लिखेंगे उसके नीचे वहां पर आप लिखेंगे कि मार्च 2023, यानी आज से 3 साल और 3 महीने के बाद। अब आप अंदाजा अमाउंट नहीं लिख पाएंगे क्योंकि आपको पता नहीं कि उस वक्त कितने अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। उस वक्त आपके फाइनेंशियल विशेस क्या है, अब आपको वो लिखना है। यानी कि आपके आज के कल्चर के, आपके आज के स्थिति के हिसाब से तब आपको क्या क्या चीजें लगेंगी। अगर आप अभी एकदम यंग स्टूडेंट है तो शायद 3 साल के बाद आपको आपके लिए घर खरीदना होगा तो वो डाउन पेमेंट की जरूरत होगी। शायद आपको बाइक लेनी है, 2 व्हीलर लेनी है, उसके डाउन पेमेंट की जरूरत होगी। या फिर आपको अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है तो उसके इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। अगर आप थोड़े से सीनियर है तो शायद 3 साल के बाद आपको कोई ट्रिप करनी है कि 3 साल के बाद तो लॉकडाउन वगैरह कोविड कुछ नहीं रहेगा और फिर हम ट्रिप पे जाएंगे, काफी टाइम से हम घूमने नहीं गए तो हमें एक ट्रिप करनी है। ये सारी फाइनेंशियल विश लिस्ट है। या फिर आपका बच्चा इंजीनियरिंग के एडमिशन में होगा 2023 में, इसलिए आपको उसके फीस की तैयारी करनी है, वो कुछ भी हो सकता है। अब आप ये लिख दीजिए कि मार्च 2023 में आपके फाइनेंशियल विशेस में क्या क्या चीजें होंगी। मैं आपको फिर से 10-15 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप इसे फास्ट लिखिए, 2-3 चीजें तो मिनिमम लिखिए।
ओके, दिखता छोटा सा प्रोसेस है पर इसी के पीछे एक बहुत बड़ा मैजिक है जो मैं आपको अब दिखाने वाली हूँ अगले 4 मिनट के बाद। अब आपको आगे ये लिखना है कि मार्च 2026 यानी कि आज से 6 साल के बाद अब आपकी फाइनेंशियल विश लिस्ट क्या होगी, सेम जो आपने 3 साल के बाद लिखी थी, बट शायद विश लिस्ट के आइटम्स चेंज हो जाएंगे। तो 2026 में विश लिस्ट में क्या क्या होगा ये जरूर जल्दी से लिख दीजिए। ओके, अब अगर आगे चले तो अब आपको ये विश लिस्ट वगैरह नहीं लिखना है, अब आपको एक लास्ट चीज लिखनी है। लास्ट चीज आपको ये लिखनी है, एक साल लिखिए, जैसे 2020 एक साल है, इस तरह से आप एक साल लिख लीजिए। वो 2040 हो सकता है, 35 हो सकता है, 2025 हो सकता है, आपकी मर्जी। एक ऐसा साल लिखिए जब आपको रिटायर हो जाना है, उसके बाद आपको कमाने के लिए काम नहीं करना है। आमतौर पर हम सबको बिजी रहना अच्छा लगता है, हम सबको कुछ ना कुछ काम करना अच्छा लगता है, पर ये साल ऐसा होगा जिसके बाद आप घर के खर्चे, लायबिलिटीज, लोन्स, इनके लिए काम नहीं करेंगे, आप खुद के लिए, अपने शौक के लिए काम करेंगे, पर आप ऑफिशियली रिटायर हो जाएंगे अपने काम से। ये वाला जो भी साल होगा आपके हिसाब से वो साल लिख दीजिए। ओके, अब इस एक्सरसाइज में आपने 4 चीजें लिखी। एक आपकी एकदम अभी इमीडिएट लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट, उसके बाद 3 साल के बाद की एक विश लिस्ट, 6 साल के बाद की एक विश लिस्ट, और ऐसा कोई साल जब आपको लगता है कि मुझे फाइनेंशियल लायबिलिटी से रिटायर हो जाना है, शायद काम से रिटायर हो या नहीं हो, लेकिन मुझे वो कमाने के लिए काम नहीं करना है, बस मुझे काम करना है अपने शौक के लिए, बिजी रहने के लिए, या अपने कोई पैशन के लिए। अब ये जो आपने लिखा है वो आपका बेसिक, एकदम बेसिक रफ लेवल का फाइनेंशियल प्लान है और फाइनेंशियल होराइजन है। जब आप एक क्षितिज क्रिएट करते हैं तो आपको समझ में आता है कि क्षितिज वो जगह है जहां पर आसमान और धरती एक दूसरे से मिलते हैं, और ये हमें कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन आपका फाइनेंशियल होराइजन आप देख सकते हो, क्योंकि आप ऐसे इस तरह से इसे रफली पहले बना सकते हो। जब आपने ये सब कुछ लिखा तो आपको शायद पता चला होगा कि 3 साल के बाद अंदाजा इतने पैसे लगेंगे, 6 साल के बाद अंदाजा इतने पैसे लगेंगे, रिटायरमेंट जब करना शुरू करूंगा तो अंदाजा, क्योंकि कमाना बंद कर दूंगा और लाइबिलिटीज, खर्चे बंद नहीं होंगे, तो इतने पैसे तो लगेंगे ही, और उसके बाद मैं अपना काम अपने हिसाब से करूंगा। तो ये जो कुछ भी आपने बनाया ये था आपका होराइजन। अब इस होराइजन में आपको थोड़ा सोच कर समझ कर इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि अगर आप आइडल कैश या आइडल सैलरी बैंक में रखेंगे तो ये पैसा जो आपने अभी इतना बड़ा फाइनेंशियल विश लिस्ट बनाया होगा वो कभी भी आपके पास जमा नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट करने का एक सरल तरीका है जिसको हम सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट करने का तरीका ये कि हम एसेट एलोकेशन करें, यानी अगर हमारे पास 100 रुपए है तो सारे के सारे 100 रुपए हम एक जगह पे नहीं डाल सकते। ये लॉजिक सबको पता है, लेकिन फिर भी डर के मारे कि ये इंस्ट्रूमेंट में जाऊं कि नहीं जाऊं, लोग एक ही इंस्ट्रूमेंट जो या तो कहीं पड़ोसी ने इन्वेस्ट किया है वैसा है, या उसके बहुत एडवर्टीजमेंट देख लिए हैं इसलिए, या फिर किसी ने बोल दिया और ठीक है हाँ हाँ ओके टैक्स की बचत हो रही है करके एक इंस्ट्रूमेंट में लोग पैसा डाल देते हैं। उसके बाद सोचते हैं अरे कितने डॉक्यूमेंट संभालूं, इतना बड़ा प्रोसेस कैसे करूं, हर चीज को बाय करने का प्रोसेस, सेल करने का प्रोसेस, उसका कब 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 बीच में पैसा आएगा पता नहीं, फिर मुझे अगर विड्रॉ करना है तो प्रोसेस पता नहीं। ये सब सोच के लोग इन्वेस्टमेंट्स को एलोकेट ही नहीं कर पाते। और जब आप बायस्ड रहते हो किसी इंस्ट्रूमेंट की तरफ, जब आपका झुकाव कुछ ज्यादा ही हो जाता है तो उसके बाद आप बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स का जो बेनिफिट आपको मिल सकता है उसको छोड़ देते हो। अब आप ही मुझे बताइए चैट पे यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो 3 से कम इंस्ट्रूमेंट्स में अपना पैसा पार्क करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स कोई भी हो सकते हैं, ये बैंक, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव, डिबेंचर्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जहां पर भी आपका पैसा पार्क होता है,
आप कितने लोग 3 से कम इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालते हैं और कितने लोग 3 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट में पैसा पार्क करते हैं? अब आप मुझे मोर या लेस लिख के भेज सकते हैं या फिर एम या एल लिख के चैट पर भेज दीजिए, तो भी आसानी हो जाएगी। ओके, काफी मिक्स्ड आंसर्स मुझे मिल रहे हैं, पर शायद मेजोरिटी इधर लोग कह रहे हैं कि हम लेस देन 3 में पैसा डालते हैं, कुछ लोग मुझे मोर कह रहे हैं। ओके, अब आप जो ये पैसा कम जगह पर पार्क करते हैं उसका आपको रिटर्न कितना मिलेगा और रिस्क कितना मिलेगा कि उलझन में जो आप उलझे, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये प्रोग्राम हो रहा है। अब जब आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, रिटर्न कितना है? ओके, रिटर्न इतना ज्यादा है, मतलब इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, नहीं 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 करना है। रिटर्न बहुत कम है, अरे यार यहाँ पर क्या मिलेगा, उससे अच्छा तो मैं खर्चा ही कर लूं। उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स ठीक से नहीं हो पाते। उसके बदले रिटर्न्स पूछने से पहले अगर आज आपने जिस तरह से अपना फाइनेंशियल होराइजन बनाने की कोशिश की है, अगर इसी तरह से आप 2-2 साल के गैप्स में ऐसा पूरा एक होराइजन बना दे कि 2020 में इतने पैसे, 22 में इतने, 24 में इतने, 26 में इतने, अगर ऐसे आप फाइनेंशियल विश लिस्ट, आपके माइलस्टोन लाइफ के वगैरह सब कुछ बना के एक लिस्ट बना ले, तो आपको पता चलेगा कि कब कब आपको कितने पैसे लगेंगे। हो सकता है कुछ और सोर्सेज है, आपके कुछ रिटायरमेंट कॉर्पस के पैसे आने वाले हैं, तो उस साल में शायद इन्वेस्टमेंट आपको पैसा नहीं निकाल के दे तो भी आपके लिए ठीक है, क्योंकि कहीं और से कुछ पैसे आने वाले। कुछ साल ऐसे होंगे जब सैलरी भी नहीं होगी और कुछ भी नहीं होगा सोर्स, तो तब किसी और सोर्स से पैसे आने चाहिए। तो ये प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपना फाइनेंशियल होराइजन सोचना है। अब जब आपने होराइजन सोच लिया तो फिर उसका एक नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि प्लीज किसी भी इंस्ट्रूमेंट की तरफ बायस मत बढ़ाइए। आप जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए एक बहुत ज्यादा मोहब्बत और बहुत ज्यादा नफरत बना लेते हैं तो वो आपके लिए ही डेंजरस हो जाता है, क्योंकि जब ये हम करने जाते हैं तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बहुत सारी चीजें एक साथ हम कर नहीं पाते। हम 1-2 इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डाल के छोड़ देते हैं और उसके बाद हमें लगता है कुछ लोग तो कितना कमाते हैं, मेरा तो पैसा बन ही नहीं रहा है। उससे भी ज्यादा चीज मैंने ये देखी है कि कभी कभी, चलिए मैं वापस से आपसे सवाल ही पूछती हूँ। सोचिए कि आपने कुछ सालों पहले एक फ्लैट खरीदा था, जो चलिए साधारण एक 1 BHK का फ्लैट था जिसकी कीमत कुछ 60 लाख रुपए की थी। आपके साथ आपके पड़ोसी ने भी सेम वे फ्लैट खरीदा, उनकी भी कीमत 60 लाख की थी फ्लैट की। आप दोनों साथ में ऑलमोस्ट शिफ्ट हुए, इंटीरियर वगैरह जो भी हुआ, पर फ्लैट की वैल्यू 60 लाख रुपए की थी। आप दोनों ने साथ में फ्लैट्स लिए तो बहुत अच्छी खासी दोस्ती है, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था। अब 5 साल के बाद वो नेबर आपके जो हैं उन्होंने बेल बजा के आपको मिठाई का डब्बा दिया एक दिन और कहा कि हमने ये फ्लैट बेच दिया है, हम अब दूसरे फ्लैट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए मिठाई लाया हूं। इस पड़ोसी को सबसे पहला सवाल आप क्या पूछेंगे? जल्दी से मुझे चैट पे बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन इस पड़ोसी को आप क्या पूछेंगे जो आपको बेल बजाकर ये बोल रहे हैं कि हमने ये फ्लैट बेच दिया, अब हम किसी और फ्लैट में रहने जा रहे हैं? ओके, हाउ, व्हाई? यस रूपाली जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप एकदम बैंग ऑन टारगेट पे है। आपका सबसे पहला सवाल, भले ही आप पूछते हैं कहाँ पर शिफ्ट हो रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्यों बेच दिया, क्या अचानक से क्यों, लेकिन आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है, दिल में और दिमाग में आपके एकदम कूदने लगता है, वो जो स्प्रिंग की तरह क्वेश्चन उछलता है, उसका नाम, उस सवाल का नाम है आपने कितने में बेचा। और कितने में बेचा जैसे ही आप पूछते हो, आपके पड़ोसी ने आपको कहा हमने इसे 95 lakhs में बेचा। 60 लाख में लिया हुआ फ्लैट 95 lakhs में बेच दिया, वो भी 5 साल के अंदर। ये तो बहुत अच्छी डील है। अब आप मुझे चैट पे फास्ट जरा फटाफट बताइए, आपको चाहिए तो सिर्फ एन या वाई लिखिए चलेगा।
अब मुझे बोलिए कि नेक्स्ट 1 महीने के अंदर आप अपना फ्लैट बेच देंगे? एक महीने के अंदर बेच दीजिए। 60 lakhs की वैल्यू में लिया था, 95 lakhs मिल रहा है उसका सामने, बेच देंगे या चलेगा, पैसे ही रहेंगे? ओके, फिर से मुझे मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं। आम तौर पर अगर आप उस एसेट में यानी कि उस घर में रह रहे हैं तो जनरली आप 95 lakhs मिलते हुए भी उस फ्लैट को बेच नहीं पाते, क्योंकि अगर उसको बेचकर कहीं और शिफ्ट होना है और बड़ा फ्लैट चाहिए तो आपको एक और ज्यादा सिवियर लायबिलिटी अपने माथे पर लेनी पड़ेगी, तब जाके आप वहां पर शिफ्ट हो पाएंगे। क्योंकि 60 का 95 हो गया, लेकिन उसी तरह वो जो बड़े 2 BHK में जा रहे हो उसकी भी तो वैल्यू बढ़ रही है, और उसकी वजह से वो और महंगा होते जा रहा है, जिसके लिए अब आपको 1 करोड़ 30 लाख निकालने पड़ेंगे। तो वो जो 35 लाख का गैप है वो सॉल्व नहीं होगा, इसलिए आप उस फ्लैट को बेचते नहीं। अब ये नॉर्मल सी साइकोलॉजी है जिसमें कुछ नया नहीं है, ये सिंपल सी बात है। लेकिन जब लोग किसी और इंस्ट्रूमेंट में अपने पैसे डालते हैं तो वो रोज उसे ट्रैक करते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि कल 100 रुपया दिया था, आज 98 हो गया, अरे बाप रे बाहर निकलो। ये तो ऐसी बात हो गई कि जिस दिन मैं छाता लेके नहीं निकला उसी दिन बारिश को होना था। इस तरह हम लोग इंस्ट्रूमेंट से भागते रहते हैं। या फिर कुछ लोग ये सोचते हैं कि 100 रुपया कल दिया था, 110 रुपए हो गए, अरे वाह 10 रुपए का मुनाफा हो गया, चलो चलो बस हमको तो खाली जस्ट एक एक्सपीरियंस के लिए इन्वेस्टमेंट करनी थी, कर ली, 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया, बस हो गया। इस तरह भी वो एग्जिट कर जाते हैं, और इसकी वजह से वो स्पेक्यूलेशन मार्केट में ले आते हैं, इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं है। क्योंकि जब आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते तो इकोनॉमी पूरी तरह से सफर होती है, पूरी की पूरी आर्थिक व्यवस्था आपके छोटे से एक एग्जिट और एंट्री डिसीजन पे भी हिल जाती है। क्योंकि आपको लगता है कि कौन सा बड़ा बात है, मैंने 100 रुपए तो डाला था, आज एग्जिट कर रहा हूँ, उसमें क्या बड़ी चीज है। लेकिन आपकी वजह से वो सेंटिमेंट चेंज हो जाती है, और जब वो सेंटिमेंट चेंज होते हैं तो अकॉर्डिंगली इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट, सब कुछ गिरने लगता है या फिर उठने लगता है। और ये सब जब होता है तो आपको फिर लगता है कि ये सब हमारे लिए काम की चीजें ही नहीं है, हमें यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारे लिए तो ठीक है, कुछ साधारण इंस्ट्रूमेंट्स है जहां पर हम पैसा पार्क कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कुछ गलत नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट जरूरी होता है। आपने एडवर्टीजमेंट देखी होगी कि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, इसी तरह हर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट हर किसी के लिए जरूरी है। बस टाइमिंग, कब उसमें से पैसा निकालना है, कितना पैसा वहां पर एलोकेट करना है, कितना और कहीं करना है, वो बस आपको स्टडी करनी है। बाकी हर इंस्ट्रूमेंट मार्केट में एक रिसर्च के बाद आता है। अगर वो एक रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है तो उसमें काफी सारी रिसर्च होके फिर ही वो मार्केट में लॉन्च हुआ होगा। कोई आपको लूटने या चोरी करने नहीं बैठा है, सब कुछ रेगुलेशंस के हिसाब से रूल्स के हिसाब से चलता है। मार्केट में प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन वो भी क्यों आते हैं? क्योंकि स्पेक्यूलेशन बहुत बढ़ जाती है, या फिर लोग अपना कंसंट्रेशन एक जगह से आगे बढ़ाते ही नहीं है। लोगों को लगता है कि ठीक है, एक शेयर कर लिया बहुत हो गया। अब आज सपोज आपने म्यूचुअल फंड शुरू किया, या कोई इंश्योरेंस शुरू किया, या शेयर शुरू किए, या रियल एस्टेट खरीदा। रियल एस्टेट में मैंने देखा है कि लोग अपने प्रॉपर्टी पेपर्स को इतना संभाल के रखते हैं, लॉकर में रखेंगे, बैंक लॉकर में ऐसे संभाल के, सिक्योरिटी वॉल्ट में रखेंगे, घर में भी इतना संभाल के रखेंगे कि ये प्रॉपर्टी के पेपर्स है। लेकिन बाकी के डॉक्यूमेंट्स जो आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स हर महीने करते हो, हर साल करते हो, अगर आप उन डॉक्यूमेंट्स को ठीक से मेंटेन नहीं करते तो फिर वो इन्वेस्टर नहीं हुए आप सिर्फ पैसों को यहाँ वहां पार्क कर रहे हो, और पार्किंग स्लिप आपकी घूम जाती है। और उसके बाद सब लोग वो पार्किंग स्लिप ढूंढने में लग जाते हैं, फिर आपको पेनल्टीज भरनी होती है, फिर वो सब सारे प्रोसेसेस की झिकझिक से आपको लगता है इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, और फिर पैसा नहीं बढ़ता है, तो उसी चेन में हम घूमते रहते हैं। तो अब हमको करना क्या है?
तो फर्स्ट स्टेप था कि हमें अपना फाइनेंशियल होराइजन बनाना है। सेकंड स्टेप था कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए एक बायस मत रखिए अपने माइंड में, एक फेवरेटिज्म मत रखिए, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए किसी तरह की नफरत मत रखिए। जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो मार्केट में बस रजिस्टर्ड होना चाहिए, एक प्रॉपर एंटिटी से आना चाहिए। आपके पास अगर आ रहा है किसी भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के थ्रू, तो वो भी कोई लाइसेंस्ड बंदा या बंदी होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बस भरोसा करके चीज ले ली लेकिन वहां पर बहुत सारे लाइसेंसिंग इश्यूज थे। अब अगर ये सब आपने कर लिया तो उसके बाद आपको ये एक और चीज सोचनी है जो हमने अपने मैथमेटिक्स में पढ़ी थी। जब हम मैथ्स पढ़ रहे थे तो मैथ्स पढ़ते वक्त हमने एक सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला सीखी थी और एक थोड़ी कंपाउंडिंग की फॉर्मूला होती है जहां पर हम ये बोलते हैं कि पैसा ही पैसे को बना के देता है। अब ये पैसा ही पैसे को बना के कब देता है? जब आपका एन यानी कितने वर्षों तक आप अपना पैसा पार्क करके रख रहे हो, बहुत सारी चीजें उस पर डिपेंडेंट हो जाती है। अब ये डिपेंडेंसी को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करें तो प्लीज ये सोच के करें कि हमें एग्जैक्टली कितने सालों के लिए इस इन्वेस्टमेंट को रखना है। अब वो एक तरह की शादी है या वादा है या कॉन्ट्रैक्ट है, और फिर उसको आप तोड़ेंगे तो ऑब्वियसली नुकसान आपका ही होगा। हम सोच के तो कर देते हैं कि हर महीने अगर 1,000 रुपए देने हैं, तो ठीक है 20 साल तक मैं करते रहूंगा। लेकिन 2 साल के बाद हमें लगता है अरे नहीं नहीं, ये 12,000 रुपए साल के जो जा रहे हैं, नहीं ये अभी तो बंद कर देते, बाद में सोचेंगे। अब आपने कमिटमेंट तोड़ दी तो पैसा आपके साथ भी, जैसे आपने पैसों के साथ चीटिंग कर ली, वो आपको उसकी पेनल्टी तो लगाएगा ही, और उसकी वजह से आपका पैसा बढ़ नहीं पाता है। तो आप पहले एन को डिसाइड कीजिए, यानी नंबर ऑफ इयर्स को हर इंस्ट्रूमेंट में डिसाइड कीजिए। अगर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें भी डिसाइड करके रखिए कि 3 साल के बाद ये पैसा वापस ले लेना है। अगर उस लालच में रहेंगे कि और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, तो जो जरूरतें थी वो तो कभी पूरी ही नहीं होंगी, क्योंकि आप पैसे को कहीं पे सिक्योर करके रख रहे हो लेकिन उसको अटका के रख रहे हो। अब ये अटका के आप नहीं रख सकते, इसलिए आपको सोच कर समझ कर इन्वेस्ट करना है। तो इस तरह से आप एन को सोच सकते हो, और एन को सोचने के बाद हर इंस्ट्रूमेंट पे आपने जो सोचा है उसमें एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपके पैसे को कंट्रोल कौन करता है, आपके पैसे के डिसीजंस कौन लेता है। ये भी देखा गया है कि ओके ओके ये भी देखा गया है बहुत जगह पर कि लोग ये भी सोचते हैं कि अगर मैं ये इन्वेस्टमेंट करूं तो मुझे बहुत ट्रैकिंग करनी होगी, और ये सारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप किसी भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी को पैसा दे देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप मैनेज करो। आपको कभी कभी इंटरमीडियरी से भी बोला जाता है कि हम बैठे हैं ना, हम मैनेज कर लेंगे, आप फिक्र मत करो। 1-1.5 साल के बाद आपको सडनली याद आता है कि मैंने वो कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, उसके स्टेटमेंट्स तो आते रहते जरा मेल पे, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो आप फोन घुमाते हो और पूछते हो आज की वैल्यू कितनी है। अब वो आज की वैल्यू, अगर वो कोई लॉन्ग टर्म का प्रोडक्ट है तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू बढ़ने में भी उतना टाइम लगेगा। आप 1.5 साल में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको 10, 12, 15 रिटर्न मिल जाएंगे। तो जैसे ही आपको वैल्यू सामने वाला बताता है, आप सोचते हो अरे बाप रे, 1.5 साल से पैसा भर रहा हूं, अभी वैल्यू इतनी हुई है या वैल्यू माइनस हो गई है, ऐसे कैसे हो गया। और इस डर की वजह से आप एग्जिट कर देते हो, और वो बंदा आपको समझाने जाता है तो आपको लगता है हाँ वो तो आपको फायदा हो रहा होगा, कुछ कमीशन कुछ इंसेंटिव मिल रहे होगी, इसलिए आप मेरे पास आए हो। उसके बदले, अगर वो सब सोचने के बदले हम ऐसा सोचे कि हमारा एन करेक्टली डिसाइड हुआ है कि नहीं, और जब वो एन डिसाइड हो गया है तो हम डिसाइड करें कि हमें उस इंस्ट्रूमेंट को मंथली ट्रैक करना है, ईयरली ट्रैक करना है, क्वार्टरली ट्रैक करना है, वो सब कुछ हम सोच के चलिए। और ये जब आप ये सब करते हैं और ये जब आप सोच के करते हैं, तो होता क्या है कि जब आप ये सोच समझ कर करते हैं तो आपको कभी ये गिल्टी फील नहीं होता कि रिटर्न्स ऊपर नीचे कहाँ जा रहे हैं। आप हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे जब पैसा चाहिए तब वो आएगा या नहीं। ये एक चीज और ध्यान में रखिए हर इन्वेस्टमेंट्स में, कि हमेशा ये ध्यान में रखिए कि रिटर्न ऑफ द मनी और रिटर्न ऑन द मनी दोनों ही इक्वली जरूरत की चीजें हैं।
आपको एलोकेशन भी इस तरह करनी है कि आपको फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में भी पैसे होने चाहिए, आपके पैसे रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट्स में भी होने चाहिए, आपके पैसे हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में हो सके तब तक पार्क्ड होने चाहिए, ताकि आपको हर इंस्ट्रूमेंट की बेनिफिट मिले। लेकिन कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस टाइम ड्यूरेशन में बेनिफिट देता है वो आपको सोचना है, और उस टाइम ड्यूरेशन तक जो आपकी लायबिलिटी है उसमें पैसा जमा करने की, वो आपको कंटिन्यूअसली करते जाना है। ये नहीं सोचना है कि अब दूसरा कोई खर्चा आ गया, वो बाद में मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो वो सब की वजह से जो आपका फाइनेंशियल प्लान हिल जाता है वो कभी भी हिलना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखिए, प्लस कोई भी इंटरनेट का पासवर्ड वगैरह अपने दोस्तों को क्या किसी को भी मत दीजिए। आपको मैसेज आता है कि आपको ये आ जाएगा और मुझे ये पासवर्ड दीजिए, मैं यहाँ पर लॉगिन करके आपको ये चीज करके दूंगा, ये सब चीजें मत कीजिए। आप खुद उसमें इंटरेस्ट लीजिए, ये आपके मेहनत की कमाई है, तो आपको उसमें इंटरेस्ट लेके करना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर किसी को शक की नजर से भी देखना है। आपको जानकारी करेक्ट होनी चाहिए, लेकिन प्रोसेस आपको पूरी की पूरी खुद फॉलो करनी है। अब ये सब जब आप कर लेते हो तो इसके आगे मैं आपको और एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जैसे कि एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है म्यूचुअल फंड्स। अब ये फंड्स का क्या महत्व होता है इन्वेस्टर्स के लिए? तो जिन लोगों को शेयर्स में इन्वेस्ट करने में डर लगता है वो जनरली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। आमतौर पर जब भी किसी से पूछा जाता है तो उन्हें लगता है म्यूचुअल फंड का मतलब शेयर मार्केट्स। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि म्यूचुअल फंड यानी शेयर मार्केट, ये धारणा थोड़ी सी गलत है, पूरी गलत नहीं है पर थोड़ी सी गलत है, जो आज हम सुधारते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर आपके लिए लोग एक कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको सैलरी ही उस चीज की मिलती है कि वो आपके पैसों की ट्रैकिंग करता रहे, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है, आप अपने करियर में उलझे हुए हो, अपने जॉब्स में उलझे हुए हो, आप अपनी पढ़ाई में उलझे हुए हो, फैमिली की उलझन है, वो सब करने में आपके पास ये सब ट्रैकिंग का टाइम नहीं बचता, और ट्रैकिंग आपको समझ में भी नहीं आ पाती। इसलिए आप एक ऐसे व्यक्ति को आपका मनी मैनेजमेंट आउटसोर्स करते हो जिसको सैलरी इस चीज की मिलती है कि वो पूरा दिन एनालिसिस करता रहे। अब जब वो एनालिसिस करते हैं तो और एक फायदा आपको देते हैं कि जो एसेट एलोकेशन आपको करनी है वो एसेट एलोकेशन थोड़ी इजी हो जाए, क्योंकि वो आपके बिहाफ पर अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते रहे। तो आपके पास अगर 2,000 रुपए हैं तो उसमें से आप कुछ वैल्यू के कुछ शेयर्स ले सकते हो, कुछ वैल्यू के कुछ इन्वेस्टमेंट्स छोटे छोटे कर सकते हो। लेकिन उनके पास क्योंकि 2-2 हजार रुपए मिला के उनके पास एक बहुत बड़ा चंक है, वो काफी जगह पे अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो जब आप ये करते हो तो आप अपना पैसा पूल करवा रहे हो, वो पूल से वो सागर बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये जो पैसा आपका कहीं पे और कहीं पार्क होता है तो उसकी आपको ट्रैक शीट भी दी जाती है, और आपको प्रॉपरली ये भी समझाया जाता है कि कहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट्स हो रही है। यहाँ पर मुझे आपको एक बहुत बड़ी जानकारी देनी है कि म्यूचुअल फंड्स का मतलब सिर्फ इक्विटी नहीं है, क्योंकि हेलो या प्रिया जी, आप पीपीटी शेयर कर रहे हो क्या? हाँ। क्योंकि पीपीटी दिख नहीं रही है। ओह, आई एम सो सॉरी। ओके, अब ये now it's विजिबल है? visible. Yeah, ओके yeah. ओके ओके ओके। तो अब जब आप मैं ओके, तो ये जो आप म्यूचुअल फंड्स को समझते हो ये सिर्फ शेयर मार्केट नहीं, ये कुछ और है। म्यूचुअल फंड में आमतौर पर 4 तरह की स्कीम्स होती है। अब हर कंपनी के अंडर ये 4 टाइप की स्कीम्स होती है और इनके अंदर फिर स्कीम के नाम होते हैं। तो आपको सही स्कीम को चूज करना है, सिर्फ रिटर्न के परसेंटेज पे नहीं घूमना है। पहला जो कॉन्सेप्ट होता है उसे कहते हैं लिक्विड म्यूचुअल फंड, जो एक लो रिस्क म्यूचुअल फंड है, क्योंकि इसमें आप जनरली शॉर्ट टाइम के लिए पैसा डालते हो। यहाँ पर आपका पैसा जो सारा का सारा पैसा पूल हुआ है वो जनरली सिर्फ थोड़ा सा परसेंट 2 से 5% शेयर्स में जाता है, बाकी का सारा पैसा फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में डाला जाता है। अब ये जो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डाला जा रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में तो आप भी पैसा डाल सकते हो, वो भी डाल रहे हैं, लेकिन वो उसको फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में थोड़ा सा एलोकेट और डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। उसके अलावा जो आपका दूसरा एक तरीका का प्रोडक्ट होता है उसको कहते हैं मीडियम रिस्क वाला बैलेंस्ड फंड।
तो बैलेंस्ड फंड का मतलब ये होता है कि जब आप 100 रुपया दोगे तो वो मैनेजर उसमें से 60 रुपए के फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट्स करेगा और 40 रुपए के इक्विटी में करेगा, या फिर जो भी प्रपोर्शन उन्होंने शीट में कहा है, वेदर 75-25 है, 60-40 है, 65-35 है, जो भी कॉम्बिनेशन है उसमें वो इन्वेस्टमेंट्स करते रहेंगे। इस बैलेंस्ड वाले मोड में आपको रिटर्न्स आने में थोड़ा वक्त लगता है कि इसमें शेयर्स का कॉन्सेंट्रेशन भी है, और इसलिए जनरली इसके रिटर्न्स जो बनने शुरू होते हैं वो लगभग 5-6 साल के बाद बनने शुरू होते हैं। और एक हाई रिस्क वाला स्कीम होता है जिसको कहते हैं प्योर इक्विटी स्कीम। अब ये हाई रिस्क यानी ग्रोथ स्कीम में क्या होता है कि 90% 95% से ज्यादा पैसा इक्विटी में यानी कि शेयर्स में लगाया जाता है उन फंड्स के थ्रू, और आपको उसमें से आपका जो हिस्सा है उतने रिटर्न्स हर रोज आपको ट्रैकिंग पे दिए जाते हैं। अब यहाँ पर आपको सोचना है कि मुझे 2023 में अगर पैसा चाहिए और मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचूं तो शायद मुझे वो पैसा करेक्टली रिटर्न बन के नहीं मिल पाएगा। तो अगर वो पैसा नहीं मिल पाएगा तो मुझे कैसे करना है उसको, मतलब आगे कैसे बढ़ूं मैं, तो उसके लिए मुझे सोचना है। इसलिए मुझे ये डिसाइड करना है कि अगर मैं लो रिस्क में जा रहा हूँ तो मुझे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने मिल रहा है, हाई रिस्क ले रहा हूं तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए वेट भी करना पड़ेगा। तो ये 3 प्रकार के म्यूचुअल फंड्स थे, और एक चौथा प्रकार है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंडिया में जैसे ही टैक्स बचाने की बात होती है तो सब लोग कूद पड़ते हैं और सबको लगता है कि भगवान मिल गए, परमात्मा सामने से आ गए टैक्स बेनिफिट दिखा के। अब ये जो टैक्स बेनिफिट के लिए आप चीजें करते हो, इसकी वजह से एक म्यूचुअल फंड स्कीम निकाली गई थी कुछ सालों पहले जिसका नाम था ELSS। अब जब ये ELSS स्कीम आई तो इसका नाम था इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, और जब ये इंस्ट्रूमेंट आया मार्केट में तो कहा गया कि 3 साल तक आप अपना पैसा उठा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। 3 साल तक आपको हर महीने पैसे डालते जाना है, और 3 साल के बाद आप डिसाइड कर सकते हो आपको पैसा वापस चाहिए, आपको वैसे का वैसे इन्वेस्टेड रहना है। अब एक्चुअली रेगुलेशन और कंपनीज के हिसाब से ये प्रोडक्ट लाने का रीजन ये था कि जब लोग 3 साल तक एक SIP भरते जाते हैं हर महीने तो उन्हें एक तरह की आदत हो जाती है, तो ये जो बीच में SIP बंद करने वाली तकलीफ है वो शायद बहुत हद तक कम हो जाएगी। इसलिए वो ELSS स्कीम लाई गई थी, और क्योंकि आपको लॉक इन 3 साल का करके रहना है, आपको बेनिफिट में ये दिया जाता है कि आपको टैक्स बेनिफिट में वो आप क्लेम कर सकते हो। लोगों ने एक गलती कर दी कि लोगों ने 10-15 साल के बाद जो रिटर्न्स आने वाले हैं उसको 3 साल से कंपेयर कर लिया। अब ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि जो 15 साल के बाद रिटर्न्स आने वाले हैं उसको आप एक 3 साल के प्रोडक्ट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और उनके हिसाब से आप ये भी सोचिए कि अगर उनको अगर ये जो फंड्स है इनको जब इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो ये भी उसी हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से टैक्स बेनिफिट और लॉक इन वगैरह दिया गया, लेकिन लोगों ने गलत कंपैरिजन करके ये सोच लिया कि ELSS में कितने भी पैसे डाल सकते हैं क्योंकि 3 साल के बाद हमें रिटर्न मिल जाएगी। और इसके बाद तकलीफ तब आई जब 3 साल के बाद उन्होंने फंड का वैल्यू देखा और उन्हें पता चला कि अरे रिटर्न तो मुझे जो बोला गया था वो है ही नहीं, और उसकी वजह से उन लगा कि म्यूचुअल फंड एक गलत प्रोडक्ट है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, कोई भी प्रोडक्ट फाइनेंशियल मार्केट्स में गलत नहीं होता, बस आपकी सोच करेक्ट होनी चाहिए। आपकी सोच भी गलत नहीं होती, लेकिन आपके अगर सवाल करेक्ट होंगे तो आपकी सोच ऑटोमेटिकली एकदम प्योरली प्रॉपर होगी। अब ये जो हमने किया, ये इस तरह से म्यूचुअल फंड में 4 अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं और आपको सोच कर समझ कर इनमें इन्वेस्ट करना है। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी कई बार हम आज सेशन सुन लिया, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी होगा, पर हम लोग करते क्या है, जैसे ही एक मैसेज आता है जिसमें हमको कुछ ऑफर दिखाई देती है या छोटी अमाउंट में बड़ा अमाउंट मिलने वाला दिखाई देता है, हमारा मन ललचा जाता है। ये जो लालच शुरू होती है उसकी वजह से वो सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर कहीं साइड हो जाता है, और उसकी वजह से कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप किसी फ्रॉड में फंस जाए। किसी ने आपसे पैसे मांगे, कहा पैसे 4 गुने करके दूंगा, आपने दे दिए क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड हो कि लॉकडाउन में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है, तो चलो कोई 4 गुने करके दे रहा है तो ले लेता हूँ। उसके बदले अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉपरली एसेट्स को एलोकेट करके इन्वेस्टमेंट्स करें तो ऑटोमेटिकली चीजें ठीक हो सकती है।
तो ये सोचिए कि मुझे एग्जैक्टली मेरे फाइनेंशियल होराइजन को मैच करता हुआ प्रोडक्ट चाहिए, और हर प्रोडक्ट में मुझे थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने हैं ताकि मैं हर प्रोडक्ट की बेनिफिट ले सकूं। और ये सब करने के बाद भी अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई ग्रीवेंस आते हैं, तो सेबी ने एक वेबसाइट क्रिएट की है जिसका नाम है स्कोर्स, SCORES, scores.gov.in। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप अपने फाइनेंशियल मार्केट के प्रॉब्लम्स को डाल सकते हैं और आपको वो सॉल्यूशन सेबी की टीम प्रोवाइड करती है। इस तरह से आपके जो भी प्रॉब्लम है, जो आपको रिपोर्ट करना जरूरी है, वो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। अब सेशन तो मुझे जो कहना था वो तो मैंने कह दिया, पर आमतौर पर मैं आपको 3 मेजर चीजें कहना चाहती हूँ। एक, अपना फाइनेंशियल होराइजन बनाते रहिए और उसे हो सके तो हर 2-3 महीने में अपडेट करते रहिए, क्योंकि हमारे टेस्ट, प्रेफरेंसेस, लाइफस्टाइल सब कुछ बदलते रहता है। अब जब हर 3 महीने में उसे रिव्यू करें तो हो सके तो अपनी फैमिली के साथ ये चीजें शेयर करें ताकि फैमिली मेंबर्स भी करेक्टली अवेयर रहे। दूसरी चीज, किसी भी प्रोडक्ट की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव या बहुत ज्यादा नफरत मत रखें, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स किसी ना किसी एडवांटेज के साथ ही मार्केट में आए हैं। और तीसरी चीज, ये जो फाइनेंशियल आपने होराइजन बनाया है और ये जो ऑप्शंस है, उन दोनों को ठीक से टैग इस तरह से कीजिए कि करेक्ट टाइम पर करेक्ट पैसा आपके पास पहुंचे। आई होप ये जानकारी आपको यूजफुल रही होगी। और अब जाने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे 2 चीजें बताएं, सिर्फ 2 चीजें चैट बॉक्स पे बताएं जो आपको ऐसे लगा कि मैं अपने फाइनेंशियल प्लान में इसका इस्तेमाल करूंगा या करूंगी, और मैं ये चीजें इमिडिएटली मैं यूटिलाइज करना शुरू करूंगा या करूंगी। ये लिखने का एक सबसे बड़ा फायदा है कि आपने अपने आप को प्रॉमिस कर दिया है कि आप ये जरूर करेंगे, और उसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल वेलबींग में कभी बाधा नहीं आएगी। तो 2 चीजें मुझे बताइए जो आपको लगता है कि आप आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद आई थिंक मैं एसएनडीटी को हैंड ओवर करना चाहूंगी। आई होप ये इंफॉर्मेशन एसएनडीटी के सारे लोगों को यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच। Yeah, thank you so much, Priyanka ji. That webinar is really wonderful. और एक चीज मुझे बहुत पसंद आई कि अपने ये ऑनलाइन के जरिए में भी 2-way कम्युनिकेशन किया है पार्टिसिपेंट्स के साथ, दैट दे आर यूजिंग चैट बॉक्स एंड अदर एक्टिविटीज ऑल्सो आपने लिए हैं, एंड म्यूचुअल फंड, इक्विटी, इसके बारे में अच्छे से हमको सबको इन्फॉर्मेशन मिली है। एंड आई होप कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से अवेयर हो गए हैं, एंड विल डेफिनेटली थिंक इन फ्यूचर कि आपका और एक सेशन स्टूडेंट्स के लिए हम रख पाए, अगर आपको टाइम होगा तो डेफिनेटली। Yeah, thank you so much, and I hope Jia, are you there? Yes, ma'am. Yeah, please continue, Jia. Yeah, I would like to thank Miss Priyanka for conducting such a wonderful session, and I would also like to thank SNDT team who let us organize investor program for their college. Thank you, and yeah, now everybody can. Yeah, just a minute. If anybody have any questions, so they can ask to Priyanka ji. जर कोणाला प्रश्न असतील तर विचारू शकता, इन मराठी, इन हिंदी, इन इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हो, हम लोग मैम को ट्रांसलेट करेंगे अगर मैम को मराठी नहीं आता होगा तो। नाही नाही, भिऊ नका, मी तुमच्या पाठीशी आहे। काही प्रश्न असेल तर विचारून घ्या। या सो कुणाला काहीही प्रश्न असतील तर विचारा। गुड आफ्टरनून मैम। जी मनीषा जी बोलिए। मैं मनीषा बात कर रही हूँ नासिक से, और मुझको ये पूछना है, मैंने एक्चुअली शेयर मार्केट में खोल के रखा, अकाउंट खोला है, डीमैट अकाउंट, और उसमें मैंने 2 फंड लेके रखे हैं, एक सन फार्मा और एक टाटा समथिंग कुछ तो भी है, और मैंने वो 3 साल से मूव ही नहीं किया, कुछ भी नहीं, ना कुछ इंक्रीज किया डिक्रीज किया। और जब मैं सोचने जाती हूँ कि मुझे चेंज करना है, तो मुझे किस में चेंज करना है कुछ समझ में ही नहीं आता, और किसी को फ़ोन लगाओ तो ऑफिस में सारे बिजी रहते हैं, जब देखो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। सो मैं कैसे उसमें चेंज करूं या फिर कैसे ग्रोथ कर सकती हूँ? आपने जैसे बताया वैसे प्लानिंग तो हम कर लेंगे, लेकिन फिर भी चेंज करते वक्त सोचना पड़ेगा। ओके, सो सबसे पहले
तो मुझे ये पूछना है कि आपको ये चेंज क्यों करना है, ये मुझे समझ में नहीं आया कि चेंज क्यों करना है। चेंज इन द सेंस आपने बताया अगर 3-3 महीने का हम लोग ने हॉराइजन बनाना चाहिए या फिर 3 साल का बनाना चाहिए और फिर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए करना चाहिए, बस उसी के लिए कि चेंज भी करना है तो अपने ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, और कुछ उसका नॉलेज भी होना चाहिए मुझे जी कि मैंने किस में डाल के रखा, क्यों डाला हुआ है। ठीक है। तो अगर आपने एक अमाउंट एक बार डालकर छोड़ दिया है, ये ऐसा कुछ अमाउंट है जो आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया है, छोड़ दिया है और वो पोर्टफोलियो बना हुआ है, हाँ, या फिर आप हर महीने कुछ उसमें पैसे नहीं डालते नहीं, हो? एक बार डाला हुआ है बस, उसके बाद में कुछ भी नहीं किया। जी। तो जब आप एक बार पानी डालते हो पौधे में तो वो हर रोज उग नहीं सकता, कुछ दिनों के बाद वो पौधा मुरझा जाएगा। तो इसी बराबर। तरह से अगर आपको चेंज करना है, तो चेंज का मतलब मैं बार बार ये वर्ड क्यों आपको पूछ रही थी, क्योंकि जब आपको अपना पोर्टफोलियो ग्रो करना है, आपको इन्वेस्टमेंट की पैटर्न भी ग्रो करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे धीरे धीरे आप पैसे डालते जाएंगे तो उतने ही पैसे फिर वापस आ पाएंगे। अगर एक बार मैंने एक अमाउंट डाल के छोड़ दिया और फिर मैं सोचूं कि ये ग्रो डिक्रीज सब कुछ हो रहा है, होने दो जो हो रहा है, पर अब मुझे और पैसे नहीं डालने इसमें, तो फिर मैं खाली उसको ट्रायल कर रही हूँ, उसको मैं इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं कर रही हूँ। तो मुझे पहले तो रेगुलरली कुछ अमाउंट्स डालने चाहिए ताकि वो अमाउंट जो इन्वेस्टेड है वो बढ़ जाए, तो ऑटोमेटिकली रिटर्न्स जब आएंगे तो वो भी मल्टीप्लाई होते जाएंगे। दूसरी चीज कि अगर आपको कंपनीज चेंज करनी हो तो चेंज की जगह अगर आप उसे ग्रो करें तो कैसा रहेगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ नुकसान नहीं है, जो भी कंपनीज में आपने इन्वेस्ट करके रखा है, अगर उस शेयर्स में कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप उसे कंटिन्यू करते हुए बाकी किसी और कंपनीज में वापस से पैसे डाल सकते हैं। जब आप ये करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो ग्रो भी हो रहा है, एसेट एलोकेशन भी थोड़ी सी बढ़ रही है, और इसी तरह थोड़े थोड़े पैसे आप हर महीने अलग इंस्ट्रूमेंट्स में भी पार्क करना शुरू कर सकते हैं। तो एक बार इन्वेस्ट करके अगर ये सोचेंगे कि पैसा अपने आप बढ़ जाएगा तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं एक बार अपने बच्चे को स्कूल भेजूं और ये सोचूं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ लिया अब अपने आप से कर लेगा बुक्स लेके, तो नहीं हो पाएगा। मुझे उसे कंटिन्यूअस 16 साल की एजुकेशन देनी होगी। तो इस तरह से आपको अपने अमाउंट्स भी बढ़ाते जाना है और उसे रेगुलरली कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है। चेंज करना है तो कंपनी टू कंपनी चेंज कभी भी कर सकते हैं, वो आपके डीमैट से आप खुद भी कर सकते हैं, और वो बहुत इजी सा प्रोसेस है जहां पर आप एक सेल कर देंगे शेयर और दूसरी कंपनी का बाय कर लेंगे। वो उतना आसान प्रोसेस है, लेकिन आपको कहाँ पर पैसे डालने वो सोचना बहुत जरूरी है। बराबर है मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। अजून कोणाला आहेत प्रश्न? Hello, ma'am. Apurva here from SNDT. Ma'am, I know the basic idea of what a mutual fund is, but recently ये बहुत सुनने में आया है that the term SIP. एक थोड़ा सा brief कर सके what is SIP exactly? I would like to know that. ओके। सो म्यूचुअल फंड में एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं SIP। उसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि जब आप हर महीने एक एक पर्टिकुलर अमाउंट डालते जाते हैं, तो कभी कभी पूरे साल में अगर एक साथ एक अमाउंट निकालनी है तो आमतौर पर बाकी के एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज की वजह से वो हम प्लान नहीं कर पाते। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट निकला था कि आप ECS से अपने बैंक अकाउंट से वो ऑटो डेबिट होते रहेगा SIP। आपके फंड की वैल्यू में वो अंदर अमाउंट ऐड होते रहेगा, ताकि वो जो रिटर्न आपका बढ़ रहा है वो और बढ़ते रहे, क्योंकि आप हर महीने उसमें कुछ और डाल रहे हो। जैसे मैंने पौधे को पानी देने की बात की, वो कुछ उस तरह से रेगुलर इन्वेस्टमेंट है। अब बहुत सारे लोग आपको ये भी कहते हैं कि मैंने SIP शुरू किया, तो वो एक बहुत आम बात है आजकल, क्योंकि 500, 1000, 2000 में भी आप SIP शुरू कर सकते हो, जो महीने में इतना बड़ा अमाउंट है नहीं डालने के लिए। लेकिन जब आप SIP शुरू करते हो तो जिस तरह से मैं आपको बता रही थी कि 4 तरह के ब्रॉड लेवल स्कीम्स होते हैं और उसके अंदर फिर बहुत सारे नाम के स्कीम होते हैं। तो आपको पहले समझना है कि लिक्विड फंड वाला SIP शुरू करूं, बैलेंस फंड वाला SIP शुरू करूं,
या इक्विटी वाला शुरू करूं, या फिर उन पैसों को अगर मुझे 5,000 रुपए डालने हैं तो मैं उसको स्प्लिट करके 2,000, 2,000, 1,000 या ऐसे उसको स्प्लिट करूं कि मुझे तीनों तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करने मिल जाए। तो इस तरह से आपको एसआईपी का प्लान स्कीम के हिसाब से करना है, और फिर हर महीने आपके पैसे कटते रहेंगे। जब आप चाहेंगे कि मुझे ये एसआईपी कटना बंद करना है तो आप बंद कर सकते हैं। जो पैसा तब तक आपने डाल दिया है उसको आप होल्ड भी कर सकते हैं, उसकी वैल्यू जैसे ऊपर नीचे मार्केट होगा वैसे होती रहेगी, पर और फंड आपका उसमें जाएगा नहीं। या फिर आप चाहते हैं कि नहीं मैं उस फंड को भी विड्रॉ कर लूं और एसआईपी भी बंद कर लूं, तो वो भी पॉसिबल है। Okay, ma'am. Thank you. Thank you. वेलकम। हेलो मैम। जी मैम बोलिए। प्रभा। जी। मैम मुझे ऐसा पूछना है, मतलब सपोज मेरे पास एक लमसम अमाउंट है 10,000 की। मैं उसको लमसम डाल देती हूँ सपोज लिक्विड फंड में। तो उसका रिटर्न, और अगर मैं वो 10,000 एसआईपी करके डालूं, उसका रिटर्न, इनमें कुछ डिफरेंस आएगा क्या? वो जो हमारा ये होगा टाइम मैच्योरिटी पीरियड। हाँ, उसका रिटर्न का जो फर्क आएगा वो किस तरह का फर्क होगा कि समझो कि मैंने आज 1,000 रुपए की एसआईपी शुरू की, तो 9,000 रुपए मेरे पास पड़े रहेंगे, मेरे ही पास रहेंगे, और 1,000 रुपए वो फंड स्कीम में चला गया है। अब वो जो 9,000 रुपए मेरे पास पड़े हैं उनका मैं क्या करती हूँ उससे डिसाइड होता है कि रिटर्न यहाँ पर ज्यादा होगा या यहाँ पर ज्यादा होगा। अगर मैं वो 9,000 रुपए सेविंग्स में ही रख रही हूँ तो मुझे वही 3-4% का ब्याज मिल रहा है उससे। लेकिन मुझे वो लिक्विडिटी की शायद जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि घर में ऐसी कंडीशन है या किसी की सैलरी कट चल रहे हैं, ऐसा कुछ है जिसकी वजह से मैं वो 9,000 रुपए आज के आज एक साथ वहां पर ब्लॉक करना नहीं चाहती। फिर वो 9,000 मुझे रिटर्न नहीं सोचना है, मुझे वो लिक्विडिटी की जरूरत है, इसके लिए मुझे रखने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर वो 10,000 रुपए ऐसे हैं जो मैं कहीं भी डाल सकती हूँ, तो या तो मैं 1,000 की एसआईपी करूं और बाकी के 9,000 में से कुछ और एसआईपी कर लूं, जहां पर मुझे इक्विटी वाला भी बेनिफिट मिल जाए, लिक्विड का भी बेनिफिट मिल जाए। तो एक फंड में पूरे के पूरे 10,000 डालने से अच्छा है अच्छा। मैं उसको स्प्लिट कर दूं अलग अलग, तो वो आपको और ज्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि हर बार वो लिक्विड आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा, बैलेंस्ड आपको थोड़ी मीडियम टर्म बेनिफिट देंगे। प्लस आप उन 9,000 से कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हो, समझो कि आप उससे अपनी सिक्योरिटी का कुछ प्रोविजन करते हो, उससे आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हो, या फिर आप और कोई इंश्योरेंस कर रहे हो, या फिर आप शेयर्स में डाल रहे हो पैसे, तो फिर उसके हिसाब से वो आपको एलोकेट करने। तो अगर आपको वो 9,000 की जरूरत है तो फिर एसआईपी करके बाकी के 9,000 ऐसे ही आइडल मत रखिए, उसको कहीं और पार्क कीजिए, या फिर आप 10,000 का लमसम भी कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। और एक पूछना था मैम, मतलब अभी मैंने लिक्विड फंड में इन्वेस्ट किया है सिर्फ 500। ऐसा कुछ होता है क्या किसी मतलब फाइनेंस, अभी मैंने आदित्य बिरला का लिया है तो उसका रिटर्न ज्यादा आता है या फिर दूसरी कंपनी का कम, ऐसे कुछ है क्या? इंटरेस्ट रेट में कुछ फर्क है, होता है क्या? ओके, सो आमतौर पर आपको म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्ट नहीं मिलता, आपको रिटर्न्स मिलते हैं। सो जो भी आपका फंड मैनेजर है, अभी अगर देखिए मैं आपको अगर एग्जांपल दूं बहुत इजी करने के लिए, तो एसएनडीटी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पर समझिए कि बहुत सारे टीचर्स हैं, तो एक टीचर ऐसे हैं जिसमें माना जाता है कि उनकी क्लास में जनरली 70-80-85% तो बच्चों के आते ही हैं, और एक टीचर है जिनके क्लास में बच्चे एवरेज है प्लस उनका रिजल्ट हमेशा 50-60% में ही आता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि टीचर में कोई प्रॉब्लम है, उसका मतलब ये नहीं कि ये है कि उस क्लास में शायद बच्चे ही बहुत एवरेज बैकग्राउंड के हैं, इसके लिए वो 50% ही ला पाते हैं। बाकी के दूसरे टीचर के क्लास में ऐसा था कि उनके केस में बच्चे ही टॉपर्स आए थे किसी और कॉलेज से या स्कूल से, इसलिए उनके 80-90% आ रहे। तो इस तरह से जब भी कोई फंड स्कीम आप कंपेयर करें तो ये देखिए कि वो कहाँ पर आगे इन्वेस्ट करने उसे। तो जब आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में आपको एक फैक्ट शीट दी जाती है, तो फैक्ट शीट में आपको छोटे भले ही बेसिक डिटेल्स दिए जाते हैं, लेकिन वो फैक्ट शीट से भी आप समझ पाते हो कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स किस तरह के हो रहे हैं, और वो जो क्वालिटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके रिटर्न भी ज्यादा आएंगे। जहां पर क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही, या जहां पर क्वालिटी तो मैं नहीं बोलना चाहूंगी, बट जहां पर इन्वेस्टमेंट्स ऐसी जगह पे हो रहे हैं जिस इंडस्ट्री पे आपको ज्यादा भरोसा नहीं है, तो फिर उसके रिटर्न्स कम होने लगेंगे।
और उसको ट्रैक करने के लिए ये भी समझ लीजिए आपकी एक कंपनी से सोचिए, अगर म्यूचुअल फंड कंपनी से सोचेंगे तो हर म्यूचुअल फंड कंपनी को कंपटीशन है, क्योंकि जितना ज्यादा उनको एसआईपीज और वॉल्यूम्स आएंगे उतने ही ज्यादा अच्छे वो इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे। तो हर कंपनी कंपटीशन मोड में अलग 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 एलोकेशंस करते ही जा रही है। आप ये मत देखिए कि कंपनी कितना रिटर्न दे रही है, आप ये देखिए कि वो जो स्कीम आप पैसे डाल रहे हैं वो कितने रिटर्न्स दे रही है। अब वो लिक्विड है तो लिक्विड में आमतौर पर मॉडरेट छोटे रिटर्न्स ही मिलते हैं, क्योंकि वो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में ज्यादा पैसे जा रहे हैं। तो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट जहां पर एक कंपनी इन्वेस्ट कर रही है वहां पर दूसरी कंपनी भी वैसे ही कुछ इन्वेस्ट कर रही है, तो आमतौर पर रिटर्न्स में ज्यादा फर्क नहीं आएंगे। इक्विटी में क्या होता है कि बिकॉज 5-5,500 कंपनीज है इन्वेस्ट करने के लिए, तो इक्विटी में बहुत फर्क आता है। म्यूचुअल फंड के कंपनीज में रिटर्न्स जो वो दे पाते हैं उसमें थोड़े फर्क ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो आमतौर पर जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो इतने सारे कंपनीज के उनके पास भी ऑप्शंस होते हैं। तो आप ये मत देखिए कि कौन सी कंपनी मुझे ज्यादा रिटर्न देगी, आप ये देखिए कि कौन सी कंपनी आपको अच्छी सर्विस दे सकती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिटर्न्स आप कंपेयर कर सकते हैं कंपनी टू कंपनी, और उसमें ज्यादा फर्क नहीं आएंगे एक्चुअली। ओके, थैंक यू मैम। हेलो जी बोलिए रत्नेश जी। मेरा प्रश्न ये है कि निप्पन इक्विटी में हमने पैसे डाले थे 1 लाख रुपए, 3 साल बाद बीच में एक बार वो 1,20,000 हुए थे, तब बेचा नहीं। अब 1 लाख को 1,01,000 में बेच दिया, और उसको हमने निप्पन स्मॉल में डाला, वो 1.5-2 महीने के अंदर ही 1,10,000 हो गया। तो क्या उसे 1,10,000 को बेच देना चाहिए या अभी पड़े रहने देना चाहिए? जी, तो पहले तो रत्नेश जी थैंक यू सो मच। मैं देख रही थी आप एकदम ध्यान से पूरा सेशन सुन रहे थे, थैंक यू फॉर दैट। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको सेशन में भी कहा कि क्योंकि उसमें 1 लाख का 1,20 हो जाएगा, 2 लाख हो जाएंगे, पैसा डबल हो जाएगा, ये स्पेक्यूलेशन है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट आप अपने लिए करते हैं, तो आपके हिसाब से जो एन है, कितने सालों तक आपको वो पैसा वहां पर पार्क करके रखना है, ये आपको पैसा डालने से पहले ही सोच के डिसाइड कर लेना है। जब आपने सोच लिया है कि 10 साल तक ये पैसा यहाँ रहेगा, तो फिर 10 साल तक वो वहां रहेगा। बस वो कंपनी बंद होने वाली रिस्क नहीं आनी चाहिए, उतना आपको ट्रैक करना है। लेकिन ये नहीं सोचना है कि बिकॉज वो बढ़ रहा है ना तो हटा लूं, क्योंकि अभी बढ़ रहा है। जैसे मैंने आपको रियल एस्टेट का ही एग्जांपल दिया था, शायद मुझे जब तक याद है आपने कहा भी था कि हाँ 60 का 95 में बेच देंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि 95 को थैंक यू, क्योंकि 95 के बाद आप ही सोचिए कि 95 में बेच देंगे तो फिर बाद में कहाँ जाएंगे। अगर वो इन्वेस्टमेंट एसेट है तो उसमें रिटर्न मिल रही है, आप बेच देंगे तो समझ में आता है, लेकिन अगर वो कंजम्पशन की एसेट है तो आप नहीं बेच पाते। तो फंड्स और शेयर्स में भी ये चीज ध्यान में रखिए कि जस्ट छोटा सा मुनाफा देखकर कभी भी एग्जिट मत कीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म के लिए आप करते हैं। तो हो सके तब तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो हमेशा आपको ज्यादा बेटर होगा। आप यहाँ से वहां शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको जस्ट रिटर्न की वजह से शिफ्ट मत कीजिए, कंपनी के फंडामेंटल्स के हिसाब से आप शिफ्ट करेंगे तो फिर ठीक है। क्या ऐसा आधार बना सकते हैं अपना कि हमको 10% मिल जाए तो हम वापस ले लें, या 20% मिल जाए तो वापस ले लें? क्या ऐसा बेसिक बना सकते हैं? नहीं नहीं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, वो एक शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेशन होगी, जो आपने जुआ खेला कि आप किसी फन फेयर में गए, तो फन फेयर में वो गेम खेल रहे थे, वहां पर आपको जैसे ही 50 का 100 रुपया हो गया तो आप और खेलने लगे, या तो फिर आपने वहां से एग्जिट करके दूसरे स्टॉल में चले गए और फिर वहां पर वापस 50 रुपए लगाए, फिर उसके 75 हो गए, फिर कहीं पे 50 का 0 हो गया। तो उसकी वजह से आप खेलते रहेंगे और आपका जो नेट आपको जो एक्चुअल उसमें से वैल्यू मिलेगी कुछ सालों के बाद, वो शायद बहुत कम मिलेगी, क्योंकि आप पैसों से यहाँ वहां खेल रहे थे। तो मैं अपने बच्चे को एक स्कूल में एडमिशन लेती हूँ तो 10 साल तक वहां से बाहर नहीं निकालूंगी, मेरी शिफ्टिंग होगी लोकेशन की तो ही बाहर निकालूंगी। मैं ये नहीं कर सकती ना इस साल इस स्कूल में पढ़ ले, सेकेंड स्टैंडर्ड दूसरे स्कूल में कर ले, 10th स्टैंडर्ड हम और किसी स्कूल में करेंगे, ये कुछ वैसा ही है। राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके ओके, सो आई थिंक काफी सारे क्वेश्चंस हमने एड्रेस कर लिए हैं। यस, ओके, या श्योर, आई थिंक सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। एंड शेयर मार्केट, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, ये बहुत बिग कंसेप्ट है। जो जिन्होंने ये सेशन अभी अभी सुना है, जिनको कुछ आइडिया भी नहीं है इन्वेस्टमेंट के बारे में,
उनको आई थिंक 2 दिन के बाद क्वेश्चंस आएंगे कि एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म होता क्या है। तो इसलिए मैंने बोला कि आपका हम इन फ्यूचर में भी सेशन रखेंगे। एंड थैंक यू सो मच। आप अनम्यूट है आई थिंक प्रियंका जी, म्यूट है सर। बीआईएपी की टीम इनफैक्ट यही करती है, ये ऑल ओवर इंडिया, ये लोग यंग लोग बच्चे बहुत मेहनत करते हैं ऑल ओवर इंडिया ये सेशंस कंडक्ट करने के लिए। तो हम हमेशा चाहेंगे कि हम ऐसे सेशंस करते रहे ताकि लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती रहे। Yes, yes, definitely. And I also thanks to Jia and Kashish, जो मेरे साथ from last 1 week connected थे, and we know very well कि इसके पीछे कितना काम होता है अगर एक वेबिनार हमको ऑर्गेनाइज करना होता है। So how much we are working on that and how much BIAP कितना काम कर रही है उसके ऊपर। हर एक चीज का बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है, टेक्निकल थिंग हो या फिर जो भी कंटेंट हम स्टूडेंट्स को देने वाले हैं। So yeah, definitely thanks to BIAP, NSC and Priyanka ji. Thank you so much. And main thing is thanks to our participants for joining this webinar. Thank you so much. Now we can close our webinar. Yeah. Have a good day. My small request to the participant is that feedback form link is provided in the chat box. So please fill it out for your certificates.